I want to know two things from the writers. This scene where Bachchan Saab asks Meenal, कि, are you a virgin? Are you a virgin? Did you all think that you all would get the answer as no? 10 years back, probably, if this film was made, the heroine would have been shown to be a Murat of virtues. I have not let a boy touch me and all. So to take this step and therefore alienate probably the 40 or 50 plus audience. शायद they are such orthodox audience, they may say अगर ऐसी लड़की है तो फिर तो इसका ऐसा ही होना चाहिए. There is a chance. Did you all deliberate on that, or it was the first thought and therefore you all went with it? And secondly, whose idea was it to show the entire drama जो hotel room में हुआ, right in the end titles? I think the person who has thought of this, there can be no more intelligent person in Bollywood. It is a master stroke. It is a master stroke. I don't know how anybody can think कि जिस जो crux है film का वो मैं last rolling titles में दिखाऊंगा. That also proves your genius, because nobody but nobody gets up from the chair, because that is अरे ये हमने देखा, you know, that kind of a thing. So that I got the answer. And that the previous question, that virgin part, was it too much of a hassle to come to the conclusion? Brilliant question, sir. Thank you so much for asking this. We have been asking for this kind of a debate rather than anything else. We really want to talk about it. It drained out writing that scene. Well, virgin in my films, I mean, sorry, Ritesh and Tony on that, has also existed in Piku also. A father tells a probable groom that my daughter is not a virgin. Do you want to still marry her? He asks directly, as direct if a father can. So, no, it's that question has never, that, you know, it's going to humiliate somebody or this. Have you ever known or have you heard anywhere that a man has been asked, are you a virgin? We have never done that. Never. I just want to add this, because this is what we discussed earlier on. Every time we ask a question to the woman, are you a virgin? It's a question mark. Every time we call it to a man, it's an exclamation mark. It's as though this is something great that he has achieved. Why is that? To give a brainstorm, how did we come to that scene? Yes, yet it was deliberate. So when Ritesh and me were discussing the script and the thing, the one thing that occurred, that Ritesh will have to prove one important thing. A woman is drinking in the night in one hotel room with few boys. Right? This woman has gone through many possibly sexual, what do I say? Experiences. Experiences. The main point to come out was that मर्द ये सोचते हैं, यार ये लड़की तो इतने लोगों के साथ सो गई, एक और सो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? Which is what my character says after that. So it's not that the virgin question. To arrive at that, कि एक बार और सो जाएगी तो, और मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे घरों के लड़के सब यही सोचते हैं, फ्रॉम ऊपर से लेके नीचे तक. इसमें कोई क्लास एजुकेशन आता नहीं है. और इस सवाल को पहुंचने के लिए आई थिंक व्हाट अ ब्रिलियंट क्लेवरली दैट ही गॉट इट. हमको ये था, इसको पहुंचना था, हाउ टू गेट टू दिस एंड देन गेट टू द पॉइंट कि ये आपका जो फर्स्ट सेक्सुअल आपका जो एक्सपीरियंस था, उसमें क्या आपको पे किया गया? पे तो नहीं किया गया आपको, और आपको फोर्स भी नहीं किया गया. इन दोनों पॉइंट को बात करने के लिए, एंड आई थिंक आई सल्यूट व्हेन ही सेंड मी द सीन. मैंने उसको बोला, रितेश तेरा हो गया, तू तो पार हो गया अभी. एंड आई थिंक ही डिड ब्रिलियंट. आई वुड वांट हिम टू टॉक ऑन दिस. ही इज जस्ट डन अ ब्रिलियंट जॉब ऑन दिस. He already said that. I mean, कोई भी आर्ग्यूमेंट या जो सवाल वकील पूछते हैं वो कंक्लूजन पे अराइव करने के लिए पूछते हैं. तो आयु अ वर्जिन जिससे वो लाइन ओपन होती है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसका कंक्लूजन क्या है. उसका कंक्लूजन यही है जो बाकी सवालों के थ्रू होता है कि कंसेंट जो है, और ये कोई खाली सुजिता, मेरी, बच्चन साहब या टोनिंदा की महान सोच नहीं है. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये कानून भी है. तो इसे ये ना समझे कि फिल्म में डायलॉग है, ये कानून है. कोई भी ऐसी महिला, इंक्लूडिंग ए सेक्स वर्कर, अगर वो ये सब करने के बाद, शराब पीने के बाद, अपने कई सारे सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बाद आपको ना बोलती है, तो उसका मतलब ना ही है, आप रुक जाइए, नहीं तो अंदर हो जाएंगे.
आपको जस्ट थोड़ा सा एक बता दूं, हाउ डू वी यूज टू डू एंड राइट समटाइम्स, यू नो, समटाइम्स हम लोग कीर्ति और तापसी को ऐसे सामने बिठा देते थे और मैं और रितेश इधर बैठते थे एंड हम लोग डिफेंस लॉयर और जो है ये लॉयर बन जाते थे एंड समटाइम्स तापसी यूज्ड टू गेट एंग्री लिटरली, सर आप ये सब क्यों कर रहे हो हमारे साथ? तो बिकॉज वी वांटेड तापसी टू बी तापसी एंड कीर्ति टू बी कीर्ति। हम लोगों ने वैसे ही डिसाइड, किसी ने हमको कॉस्ट्यूम्स को लेके पूछा था, आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं इनको जाके पूछता था यार ऐसी सिचुएशन में तुम लोग क्या पहनोगे, ये नहीं कि कोई डिक्टेट फ्रॉम आस कि ये पहनना है तेरे को, बिकॉज इट इज़ देयर फिल्म एंड दे फील वी आर नॉट अ वुमन सो दे विल नो, सर हम ऐसे मोड में यही पहनेंगे। मैंने ठीक है तुम ऐसे मोड में यही पहनो, सो दैट्स वाई दिस नेचुरल जो उनकी जो आई है बिहेवियर बिकॉज ऑफ दिस। सॉरी, मेरा आंखों के सामने हुआ था। आई वांट टू टेल यू समथिंग, वन इंस्टेंस इन कैलकाटा, इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी आई यूज्ड टू नो अ यंग गर्ल, she did something good, they had a party, she came to me, she told me in the morning the society people are throwing her out and they are telling that she was doing wrong things because she was having a party, maybe she was drinking with men and other women, and from the society women were also there. And there another instance, I was in a debate in a regional television after a particular rape case where I told a woman has every right to go to a pub, but that doesn't mean people will take her for granted. But I was stopped. No, a woman can't go to a pub at 12 o'clock in the night. So out of all this angst, out of all this suffering, I think this happened. But Komalji, thank you so much for asking this brilliant question. I mean, I wanted to answer this for many people. I was dying and I kept bringing up Parag. I said, you keep a seat for me. I have to come. I have to come. Thank you for asking the question, sir. I mean, we want to answer. I think, Sujit, that is why this, we talk about cinema changing and cinema changing people's thinking, modern cinema, forward-thinking cinema. In the true sense of the term, you all have achieved what 90% of the people have been talking about. This is forward-thinking cinema, and this is cinema which can change people's viewpoints and people's thinking. Genuinely, I'm telling you, 90% of us, and it takes great courage to say that हमारे नेबर के साथ ऐसा हो जाए, अगर कोई लड़की रात को लड़के के साथ आती है, लड़के के साथ बैठ के शराब पीती है, लड़कों के साथ मूव करती है और हादसा ऐसा हो जाए, we will pretend that we are concerned, दरवाजा बंद करके all of us will say इसके साथ ऐसा ही होना था, रात को 2 बजे। It requires courage to say, I promise all of us do that. And this time, this film for the first time tells us, don't go by what she's wearing or with whom she's moving. Probably she's doing all this, yet she will not allow to be used. This film for the first time at least explains to us कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो कपड़े पहनती है, बोलने में dialogues बहुत बोले जाते हैं. This hits you here. It hits you. Thank you. Superb, sir. Thank you. Hello, I want to ask you a question. Angad, you are playing the main bad boy here in the film. आपकी जो विवशता थी वो हमने देखी कि आप खुद अपने आप से मजबूर हैं क्योंकि आपको ऐसा बड़ा किया गया था। आपके फादर ने जिस तरह का कोल्ड रिएक्शन दिया था इस सुन के, वो बता रहा था कि इसमें आपसे ज़्यादा उनकी गलती है। तो बाप अपनी बेटी को कहता है सर झुका के चलो, प्रोटेस्ट मत करो, और बेटी माँ उन बेटों पर फ़ख्र करती हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है। हम सब ने ऐसी माएँ देखी हैं जिनके 4-5 बेटे होते हैं, तो वो बाकायदा इसमें फ़ख्र करती हैं कि हाँ ठीक है, तो मर्द है तो गुस्सा तो आएगा ही, चुपचाप कोने में थोड़ी बैठेगा, ठीक है उसको प्रोवोक मत करो, दैट गर्ल वाज नॉट वेयरिंग अ दुपट्टा, क्लीवेज दिख रहा था, थिंग लाइक दैट। माँ बाप का क्या रोल होता है इस तरह के डेविल्स को क्रिएट करने में सोसाइटी में? आप एज द बॉय इन द फिल्म हु इज़ ऑन द नेगेटिव साइड बता सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो राजवीर सिंह है, ही इज़ नॉट ऑन द नेगेटिव साइड, इसकी अपब्रिंगिंग कंजर्वेटिव है। तो जैसे आप सुजीता की सारी फिल्में देखेंगे, सब हालात के कैरेक्टर्स हैं, तो राजवीर सिंह भी एक हालात का कैरेक्टर। जिस तरीके से आपने बोला कि हर माँ को गर्व होता है कहीं ना कहीं कि उसके बेटे को गुस्सा आता है, मैं ये कहूँगा कि हर माँ को अपने बेटे पर गर्व ज़रूर होता है, जैसे कि हर पिता को अपनी बेटी पर होता है। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि कोई भी माँ को गर्व होगा कि उनका बेटा गुस्से से अपनी पहचान बनाए। आई डोंट थिंक दैट। जी, आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं ये जो ईवल थॉट है, या जैसे आपने डेविलिश थॉट बोला, ये जो हर मर्द के अंदर होता है, उसको बुझाने की ज़रूरत सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं। और जैसे ये सीड है, ठीक है, वो सीड जो माँ बाप हैं, वही जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि
जब बच्चियां जवान होती हैं तो कैसे उनको अथॉरिटी मिलनी चाहिए। तो यही चीज़ हमें अपने बेटों को समझानी पड़ेगी एज पेरेंट्स, इवन इन स्कूल्स। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जब मैं स्कूल गया था तो मुझे सेक्स एजुकेशन नहीं मिली थी। ये बहुत एक टैबू सब्जेक्ट रहा है इतने सालों तक। हालांकि आज तक वो तो ये पिंक के वजूद से आज थोड़ा मैं भी उजागरित हो रहा हूँ, जो चीज़ें मैं सुन रहा हूँ। लेकिन जब मैं स्कूल में था तो हमें सेक्स एजुकेशन या अबाउट द ऑपोजिट सेक्स के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया गया था। तो ये ज़रूरत है आज की कि ये पहले तो माँ बाप अपने बच्चों से बात करें, उनको एक नारी को आदर जिस तरीके से और सम्मान जिस तरीके से दिया जाता है वो सिखाएं, क्योंकि नारी का वजूद जो हमारी सोसाइटी में बहुत ऊंचा दर्जे पर रखा जाता है और उसको आदर करना, उसका सम्मान करना All right, Tapsis, yeah, good. हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए।